We have a dream like when will I speak English fluently. So every time we wake up early in the morning and today I'll read this much of chapters. I will read 2 chapters, I will read 3 chapters, I will make sentences, I will learn grammar rules, I will learn the rules of translation, blah blah blah. But end of the day, what happens? Life is going on like this way, and of course we are not improving, we are not learning English anymore. So now what we can do now, if really we want to learn English, if you really want to learn English, so we need to do something extra, additional, whatever you are doing at present. If you will not do the extra miles, if you will not go extra miles, so definitely you will not learn, you will not be good at English basically. So what you can do, you just watch the videos what I am posting on the YouTube, on the Facebook, on the other social media platforms, and just follow the simple steps. It's not like I'm not asking you to go and climb on the mountains and do the yogas which are very difficult. I'm just simply asking you to follow it. It's generally videos are 10 to 15 minutes of length. Generally videos are this much of length only. The reason being that we are living in a very hectic life, we are in a busy life, so we don't have that much of time. We cannot spend 1 hour or 2 hours on the classes. So you can watch these videos in the evening, in the night, during when you are going for the sleep, because at the time whatever you will listen, whatever you will see, whatever you will study, that will directly go into your secondary brain. We have two brains, as everybody knows, most of the people know, we have two brains. So that will go your unconscious brain, and yes, after some time you will start learning English, you will start speaking English. It is not that much difficult as we have made a hype kind of thing. It is easy, simple, but yes, it's a tricky. You have to understand the feeling, how exactly it goes on. So I have just, after this you will see a demo video. It's not exactly demo video, you can say, it's my regular videos. So after this you will see, I will use I'm using a whiteboard and a marker, and what I will say, watch till the end of the video. Video's length is not as much, I told you 10 to 15 minutes, and I hope I try to make it funny as can be, but sometimes maybe it is not that much funny. So watch till the end of the video and do comment, do write. In the description box you will get the number also. In case if there is any like necessity or urgency kind of thing, if you want to talk to me, you can call me, else try to send me a message or WhatsApp or comments. I'll try to reply, we will reply. So guys, keep watching. Thank you so much for watching it. Have a nice day. Bye bye and take care. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे। कंटिन्यू मतलब जो हमारा काम जारी है, इस समय बोलते समय जो काम जारी है, या जिस भी समय आप जिस भी अवस्था में है उस समय जो काम जारी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। मतलब वो काम चल रहा है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हैं हल्का सा। जैसे मान लीजिए कि अभी वो काम सुबह से चल रहा था, तो डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएगा। मतलब अभी आप लगे हुए सुबह 9 बजे काम कर रहे हैं 9:30 तक, तो आप इस समय हैं तो आपका ये काम जारी है। क्या काम जारी है? बोलने का या लिखने का या सुनने का, समझने का, दौड़ने का, जागने का, खेलने का, कूदने का। सो व्हाट वी कैन से, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द मोमेंट द वर्क विच इज कंटिन्यू, which is going on, which is in progress, which is imperfect, which is in between. All these words are just telling only one thing, and that is the work is in progress. Work is yet not completed. Work is unfinished. इन सब का मतलब ये था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम जारी है, काम मध्य में है, काम बीच में है। किस समय? जब आप इस समय की बात कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इस समय क्या होगा,
कोई खाना बना रहा होगा, फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सारे क्या हो गए कॉन्टिन्यूस। देखिए अगर आप इसको एक थोड़ा सा याद करें, या मैं उस एंगल से नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ इसको बेसिकली, इसलिए मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होती है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ट्रांसलेशन वाले कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, इस तरह से बात करते हैं उसको। तो मैं उसको भी बताऊंगा, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा इजी लगता है, जो मुझे लगता है सीखने का तरीका है, ये मेरा अपना मतलब ऐसा नहीं इन्वेंशन है, ये साइंटिफिक मेथड। हमें जिस चीज़ को सीखना है उसी तरीके से सीखें तो बेटर रहेगा, ना कि किसी और तरीके से, वो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। एनीवे, अब मैं आता हूँ, जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस पीछे मैंने बताया होगा, आई एम स्पीकिंग, SPEAKING। अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है ही के साथ क्या लगता है, इज स्पीकिंग। ही के बाद क्या लिखना है, शी इज स्पीकिंग। इसके बाद यू आर स्पीकिंग। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए, यू आर, वी आर स्पीकिंग। इसके बाद और क्या हो सकता है, दे, एक वर्ड होता है दे, मतलब वे। अब इसको स्पीकिंग के बदले क्या कीजिए, यहां चेंज कीजिए रनिंग, RUNNING। आप इसमें लिख लीजिए प्ले, PLAY। अभी क्या करना है आपको, इसी की ही प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम वो प्रेजेंट में बीतता है। तो आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, एक और भी बच गया इसके अंदर, वो भी लिख लीजिए, इट इज प्लेइंग। अभी ये सेंटेंस बना लीजिए कि ये मतलब चल रहा है, इसको चलने के बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा है तो इट इज़ प्लेइंग, तो ये चल रहा है, इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। सो आपने क्या करना है, ये सेंटेंसेस इस तरह से बनाने हैं, आई एम रनिंग, ही इज रनिंग, सी इज रनिंग, यू आर रनिंग, वी आर रनिंग, दे आर रनिंग, इट इज रनिंग भी बोल सकते हैं आप। याद हो गया, आगे चलते हैं। इसको ऐसे रखो, ये तो सिंपल हो गया बात करने के लिए। अच्छा, अगर ये बोलना है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट, सपोज टीवी की बात करते हैं, नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। अब सिंपल सेंटेंस बनाइए, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, you are not watching TV, they are not watching TV, we are not watching TV या मूवी। इस तरह से आपको इसको बनाना है। बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब एक डिफ़िकल्ट सेंटेंस मान लीजिए, हिंदी वाला कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। आप पहले देखने का सोचेंगे, फिर मैं का होगा आई, और नहीं देख रहा हूँ कंडीशन लगाएंगे, एम नॉट लगाएंगे, तो एक डिफिकल्ट सा सेट होता है स्ट्रक्चर, और वो काफ़ी मतलब इजी नहीं होता है। उसकी वजह से इंग्लिश का फ्लो नहीं आएगा आपको। अगर आपको फ्लो चाहिए तो फ्लो का यही तरीका होता है। आप इसको कभी भी कीजिए, करना पड़ेगा, पहले या बाद में करना ऐसे ही पड़ेगा। सो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो आप उसको बोल सकते हैं। तो आई, ही, शी, यू, दे एंड वी लगा सकते हैं। अब इट इज़ नॉट वॉचिंग टीवी मत करना, क्योंकि इट का कुछ होता नहीं है, इसलिए इट से नहीं बनेगा, मतलब निर्जीव वस्तु होता है जो जिसमें जान नहीं होती है। चलिए, आई होप आप इसको नोट करके और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको कमेंट में बताना है, या नीचे व्हाट्सअप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया। अब इसी को सेंटेंस थोड़ा चेंज करते हैं।
सपोज आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू स्मोकिंग, ऐसे बोल सकते हो, या आर यू गोइंग, ऐसे बोल सकते हो आप, आर यू गोइंग। सेंटेंस में और भी आगे होना चाहिए, बट इजी समझने के लिए हम इजी तरीके कर रहे हैं, बड़े सेंटेंस आपको बनाना आ जाएगा बाद में। सो आर यू स्मोकिंग। अब जैसे मान लो किसी को, आपको नहीं पता कि वो बंदा स्मोक करता है और सडनली उसने सिगरेट निकाली और सूटा लगाना शुरू कर दिया, तब लोग आर यू स्मोकिंग, आर यू स्मोकिंग। वैसे इसका एक्चुअल ऐसे पूछना जिसे हमें नहीं पता होता तो डू यू स्मोक बोलते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, लेकिन आपके सामने कर तो आर यू स्मोकिंग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपके सामने कर रहा है और आपको उसका आइडिया नहीं था। सो आर यू गोइंग, आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, आप जा रहे हो या तुम जा रहे हो, जो भी आप बोलते हैं। सो अब क्या करोगे आप इसमें, क्वेश्चंस पूछना में, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अब जैसे एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं, कहीं कोई प्रोजेक्ट था उसमें बोला गया। अब इज ही गोइंग, इज सी गोइंग, आर वी गोइंग। आर वी गोइंग में क्या हो सकता है भाई, पूरी फैमिली है, 5-7 लोग हैं और आपने डिसाइड किया कहीं जाना है किसी पार्टी में, तो क्या बोलोगे, आर वी गोइंग टू द पार्टी, ऐसे बोलेंगे, आर वी गोइंग टू द वॉच अ मूवी। तो इस तरह से आप चीज़ों को बोल सकते हैं, आर वी गोइंग फॉर अ पिकनिक। सेंटेंसेस ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो आर यू स्मोकिंग, आर यू गोइंग, एम आई गोइंग, इज ही गोइंग, इज सी गोइंग, आर वी गोइंग, आर दे। अब एक दे बच गया, आप दे से बना दो, आर दे गोइंग भी आप बना सकते हैं, आर दे गोइंग, क्या वे लोग जा रहे हैं। देखिए मेरा फोकस जो बार बार है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, दैट इज प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन गिव यू द एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा एडवांटेज, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे आसानी से। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप उसको सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो कोई फायदा ऐसा आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। जैसे बुक्स में लिखा हुआ आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फिर वो एज चीज रह जाएगा। सो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सीख सकते हैं। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू लर्न द इंग्लिश। सो अब आर के ऊपर आ गया, चलिए और आगे देखते हैं। आर यू नॉट गोइंग टू सिनेमा, ठीक है, या स्कूल कर लो आप, या पार्टी बोल दो आप। देखिए अब अगर देखा जाए तो इसमें आप बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, कितने बनेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ क्या आ गया, यू आ गया, यू के बाद क्या हो जाएगा, आई, ही, शी, इट, और वी, यू, दे। अच्छा नाम भी आ सकता भाई, ऐसे आप राम लिख दो, श्याम लिख दो, मोहिनी लिख दो, कोई भी ऐसा नाम आ सकता है। सो आपको टेंशन नहीं लेना। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है प्रैक्टिस। गैस व्हाट्सअप जरूर कीजिए मुझे या कमेंट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है। लाइक आर यू नॉट गोइंग टू सिनेमा, एम आई नॉट गोइंग टू सिनेमा, एम सॉरी इज ही नॉट गोइंग टू सिनेमा, इज शी नॉट गोइंग टू सिनेमा, इज इट नॉट गोइंग टू सिनेमा। गलत बनेगा, रीजन क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। अब इट में अगर हम यहाँ डॉग की बात कर लेते हैं तो समझ में आता है, कोई पेट एनिमल है उसकी बात कर लेंगे तो चलेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस सिर्फ बना रहे हैं हम, ऐसा एज यूज नहीं होगा लाइफ में। ओके, आर वी नॉट गोइंग टू सिनेमा, आर यू नॉट गोइंग टू सिनेमा, आर दे नॉट गोइंग टू सिनेमा, इज राम नॉट गोइंग टू सिनेमा, इज मोहिनी नॉट गोइंग टू सिनेमा। इंजॉय, इंजॉय के साथ साथ लर्न भी कीजिए, रटिए, थोड़ा सा क्रैम कीजिए।
आपको स्ट्रक्चर एक रटना है बस खाली, और वो है क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं और उसमें हमें नॉट का आभास हो रहा है, मतलब कि हमें लगता है कि शायद वो नहीं काम कर रहा है। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो आज, सो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अरे पार्टी में नहीं जा रहा भाई, आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी ब्रो, ब्रो आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी। अब ऐसे बोल सकते हैं ना, तो यही फ्लो होता है भाई, यही फ्लो आपको लाना है और कोई तरीका नहीं है। आप ट्रांसलेशन को भूल जाए उतना बढ़िया है, जल्दी जल्दी भूल जाए बढ़िया है, बट अगर हाई डिमांड रहेगी तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगा कैसे करना होता है, बट आपको घूम फिर के यही आना है, क्योंकि इंग्लिश बोले तो इंग्लिश की तरीके से सीखनी पड़ेगी। एनीवे, सो अब ये हो गया। अब दूसरे बातें हैं, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, इज it not going to school when we are talking about an animal. Are we not going to school, are you not going to school, ऐसे बन रहा है ये, इस तरह से ऐसे करके फिर आगे बनेगा, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे, और यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग होगा वो आ जाएगा कुछ ना कुछ। क्या आएगा, इज एम आर में से एक सेंटेंस आएगा, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से बनेगा ये। नाउ आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी, एम आई नॉट गोइंग टू पार्टी, इज ही नॉट गोइंग टू पार्टी, इस तरह से सेंटेंस आप बनेंगे। इज ही नॉट गोइंग टू पार्टी, आर वी नॉट गोइंग टू पार्टी, आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी, आर दे नॉट गोइंग टू पार्टी, इज राम नॉट गोइंग टू पार्टी, इज मोहिनी नॉट गोइंग टू पार्टी। या फंक्शन भी आप बोल सकते हैं, यहां पे आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। नाउ गाइस, अभी तक मैंने आपको जो बताया, कुछ चीजें बताई थी सिंपल तरीके से, कि अगर मेरे पास कुछ है तो बोल रहा था मेरे पास आई हैव अ पेन, अब मेरे पास कलम है तो मैं पेन की बात करूंगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ स्पेक्स, मतलब जिसका मैं मालिक हूं, ये मेरा ओनरशिप है, मैं इसका मालिक हूं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, तो आई हैव बोल दिया। अब एक कंडीशन बताई थी मैंने कि यह है डस्टर है, सो दिस इज अ डस्टर, दिस इज पेन। इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा बहुत, किसी के बारे में बताना था, तो हमने क्या किया, यूज किया दिस या इट इज, दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन। हाय, दिस इज राम, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज श्याम, माई नेम इज एस के वर्मा। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी सेंटेंसेस की, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की, ये समझना चाहा कि अगर कोई काम चल रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। द वर्क इज गोइंग ऑन, एक्शन प्लस आईएनजी, यही देखा था हमने क्या देखा था, एक एक्शन होगा और उसमें क्या लगा रहेगा, आईएनजी लिखा रहेगा, एक्शनिंग, ACTION ING, एक्शनिंग। देखिए ये ऐसे वर्ड नहीं होते हैं, बट ये लर्न करने के लिए बनाए गए हैं। एक्शनिंग, कोई काम हो रहा है उसमें आईएनजी लगा दो तो एक्शनिंग हो जाएगा, मतलब जैसे गो का गोइंग हो गया, रन का रनिंग हो गया, प्ले का प्लेइंग हो गया, वॉच का वॉचिंग हो गया, लिसन का लिसनिंग हो गया। ये वर्ड्स मैं आपको लिखूंगा बाद में, या वो व्हाट्सएप पे ही डाल दिया करूंगा, ताकि वहाँ से आप लोगों उसको क्रैम कर सकें। अब उसमें भी क्या आता है, क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारी हैबिट क्या होती है क्वेश्चंस पूछने की, हम बताना कम चाहते हैं, पूछना ज़्यादा चाहते हैं। दिस इज आवर ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। वी आर वेरी टॉकेटिव नेचर, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकेटिव, ओनली फ्यू ऑफ देम आर लेस टॉकेटिव। सो अब क्या होता है, हम क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, वी आर टू द प्रोबिंग मोड एवरी टाइम। तो क्या कर रहा है भाई, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, मत करो इसको, ऐसे नहीं वैसे करो। सो बी जस्ट एवरी टाइम वी ट्राई टू इम्पोज। सो उस केस में आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर कोई बात करेगा तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया थोड़ा सा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऑल दो ये हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस मांगे चलिए, उसका छोटा सा पार्ट है जो वर्क आपका एज इट इज चल रहा है। सो गाइज, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैंने कहा था मेजरेबल है, और ये करीब 5-7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब आप कुछ चीज़ों को बोल सकते हैं जो मैंने अभी रिवाइज कराया आपको। सो बाय दिस वे यू विल फील कि यस, कुछ चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, अब आपको नहीं समझ में आएगी, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर कर लोगों के साथ एज मच एज मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, सो दैट लोग इससे जुड़ सकें और आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके आपके सर्कल में ही। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।